नीवा हो गई बैठता है। घर च सोफे लगे ने जिथे मर्जी बैठो कोई गल नहीं, पर इत्थे ते मंगते बन के बहना है। मंगता कुर्सी ते बैठेगा, पर अजकल वाले मंगतियां वांगू वो गया एक कहंदा बीबी जी रोटी, वो आखन लगी अजे पक्की नहीं, कहंदा मेरा फोन नंबर ले लो मिस कॉल मार दियो मैं आ जाऊंगा। इदां दे मंगते असी इदां दे मॉडर्न मंगते हैं भी असी मंगते भी रहना है, पर चाहिए भी सानू कुर्सी है। जे मंगते हैं फिर मंगते बनने विच कोई शर्म नहीं चाहिए। जो बह जाइए थल्ले, हम भीख भिखारी तेरे तू निजपत है दाता। मैं हमेशा ही आप जी दे चरना विच अर्ज कीती है, तू दाता दुनिया दा। सतगुरु जी दद्दा दाता एक है सबको देवन हार। तू दाता दुनिया दा जगत भिखारी है, 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 तू दाता दुनिया दा जगत भिखारी है, 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 तू दाता दुनिया दा जगत भिखारी है। नीवे बन के आइए फिर नहीं कमी। नानक पुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे। गुरबाणी दी पंक्ति सारियां दी रसना ते आवे। जिन्नी गुरु मनाया, 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 जिन्नी गुरु मनाया। रज रज से ही खावे, रज रज से ही खावे, जिन्नी गुरु मनाया, जिन्नी गुरु मनाया। रज रज से ही खावे, जिन्नी गुरु मनाया, जिन्नी गुरु मनाया। रज रज से ही खावे, जिन्नी गुरु मनाया, जिन्नी गुरु मनाया। रज रज से ही खाहे, रज रज से ही खाहे, जिन्नी गुरु मनाया, जिन्नी गुरु मनाया। रज रज से ही खाहे, जिन्नी गुरु मनाया, जिन्नी गुरु मनाया। रज रज से ही खावे, जिन्नी गुरु मनाया, जिन्नी गुरु मनाया। नानक मुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज सेई खाहे। सच्चे पातशाह नूं मना लिया जिन्हां ने, उन्हां नूं कमी नहीं किसी गल। ते अर्ज करदा सां कि सेवादास ने धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दीदार कीते, प्रैक्टिकली वेख्या जीवन गुरसिखां दा, बड़ा मन खुश होया। गुरु दे प्यारियां दा जीवन वेख के बंदगी वालियां ने धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं बेनती कीती, महाराज सिੱਖੀ दी दात बख्शो। ते महाराज सच्चे पातशाह जी आखन लगे, ये महंगी वस्तु है जिउंदे बंदियां दे विच नहीं।
ਇਹ ਵਾਟ ਅਵਲੜੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਮਾਣ ਮਨਾਰੇ ਢਾ ਕੇ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, 10-12 ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਖੀਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਖੀਰ ਬਣਾਤੀ, 1 ਕੌਲਾ 2 ਕੌਲੇ 3 ਕੌਲੇ 4 ਕੌਲੇ ਖਾ ਗਿਆ। 4 ਕੌਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਗਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਣੀ ਲੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾ ਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 6 ਉੱਠਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 6 ਤੋਂ 9। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਲ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆਵਾਂ, 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਖੇ ਰਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੌਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਪ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ 11 ਵੱਜਣ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 5-7 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਜੁੜਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। 11:15 ਵੱਜ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀਕਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂਜਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ ਜਰਾ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵੱਡ-ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਅਵ ਹੈ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ, ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਘਾਰੀ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਰਨ ਪਹੁ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੰਘਾਤਾ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
उन्होंने मैनू सिक्खी की दात बख्शी। आखन लगी तू हुण भगती करदा रहिंदा, बुल फरकदे रहिंदे ने, हुण घर बार छड्ड के चलिया जाए। भगत ते जेड़े ने घर बार छड्ड के चले जांदे ने, जंगलां च रहिंदे ने। आखन लगा नहीं मां, मेरे सतगुरु घर बार छड्डण दी सिक्ख्या नहीं दिंदे, वो परिवार छड्डण नूं नहीं कहिंदे, वो वकार छड्डण वास्ते सिक्ख्या दिंदे ने। भाई रहना घर विच ही है, रहना बच्चियां च ही है। तू मां कहंदी मैनू छड्ड ते नहीं जाएगा? कहन लगा मां नहीं, मेरे सतगुरु ते आप बच्चियां वाले ने। उन्हां दी मां उन्हां दे कोल रहिंदी है, उन्हां दा परिवार उन्हां दे कोल रहिंदा है। छेवें पातशाह खुद बच्चियां वाले है ते उन्हां दी कृपा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह उन्होंने मेरे ते मेहर कीती है, मैनू अपना बनाया। आओ पंज प्यारे स्टेज ते आउणगे, किसी ने उठना नहीं, बैठे रहो अपनी अपनी जगह ते। संगत नूं बेनती है उठो ना, सज जाओ, उठियो ना। जिन्हां ने अमृत छकिया उन्हां नूं जी आयां नूं कहना है। सारी संगत ने अपनी अपनी जगह ते सजे रहना। भाई उठियो ना। जी आया नू, 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 जी उठे ना कोई, एकाग्रता बना के बैठे। कलगी धर दे जाया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, कलगी धर दे जाया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, कलगी धर दे गुरु वाले बने ने, जिन्होंने सतगुर ने अपने बनाया, बहुत 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 बधाई। सारे कृपा करके बोलो, बोलो।
संगत महाराज के चरणों च बैठी है। भागा वाले ने जिहड़े जुड़े ने, जिन्ना अमृत छकिया है, जिन्ना जिन्ना नूं सतगुर दे वधे परिवार दा चाह है, वो संगण ना जरूर जदों जकारा लगे बावां खड़ियां करे हो सारे, जरूर कृपा करे। कल बहुतियां बेनतियां नहीं कर होइयां, पर फिर भी चलो जिन्हां दे भागां च सी 170 प्राणी सतगुर दे जहाजे चढ़े। जे परसों दा दीवान भी हुंदा कल भी फिर काफ़ी वड्डी गिणती थी, पर चलो फिर भी जिन्हां दे भागां च है महाराज साहब ने मेहर की। बहुत 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 बधाइयां। सारे साथ दिओ, बावां खड़ियां करिओ। जिन्होंने महाराज साहब जी ने अपने बनाया, बहुत बहुत बधाइयां। शहीदी शहीदी सेवक जथा, ध्यान दो, शहीदी सेवक जथा जिन्ना नौजवाना ने, ध्यान दो, जिन्ना नौजवाना ने सारी संगत ने रल के उपराला किया और इत्थे उही परिवार सारे तकरीबन 3-4 हज़ार परिवार ऐसा है जेड़े 84 वेले शहीद होए ने। किसी का भरा शहीद होया, किसी का पिता शहीद होया, एक एक परिवार के 5-5 जी भी उस वेले शहीद होए ते सारियां दे जख्म अजे तक अल्ले ने। वो भी क्यों? क्योंकि वो सारे कारनामे करने वाले जेड़े लोग सन, कुछ करने वाले अजे भी सड़कों ते तुरे फिरदे, अजे भी घूमते। अज तक कोई सुनवाई नहीं, अजे तक ये परिवार परेशान ने इस गल। इन्हां सिंघां ने महान उपराला किया है और अज तक बड़ा संताप भोगिया है। उस वेले 5500 तकरीबन सिख जेड़े सी शहीद होए, 5500 के लगभग, थोड़ी गिनती नहीं हुंदी 5500, थां थां ते टैर पा पा के साड़े गए। सो इन्हां दी महान घालना है जिन्हां ने सारी जिंदगी ये संताप भोगिया। और वड्डी गल यह है कि बहुत सारे परिवार जेड़े पूरे सिक्खी विच ने जुड़े हुए। सो ये महान इन्हां दे
घालना नूं भी साडी नमस्कार है। सिंघां दे परिवारां ने जिहड़ा अज तक संताप हो गया। सो महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश नाल हौली हौली अपने अपने कामां विच जिवें जिवें सतगुरु जी ने रोजगार बख्शे ने लगे हुए ते सतगुरु के चरणों में यही अरदास है भी सच्चे पातशाह इन्हां सारे परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण जिन्हां ने महान उपराला ये सारा कीता है। संगत जी जो बेनती कर रहे हैं कि जेड़े जेड़े जुड़े हो महाराज साहब के चरणों नाल वधाई है और इत्थे ही बस नहीं अपनी जिंदगी च होरां नूं भी जोड़न दा यतन करना कोशिश करनी लगे रहना चाहिए। 1 2 4 10 एक नूं भी जेड़ा जोड़ दिंदा है बहुत वड्डा महान पुण्य है किसी टुटे नूं जोड़ना। और अजोके समय अंदर बहुत लोड़ है अपने नौजवानों नूं इस पासे लाउण दी। बहुत सारे बच्चे सिरां ते टोपियां पाई फिरदे ने दस्तारा सजाओ। मैं कल भी आप जी के चरणों में बेनती की सी सिੱਖੀ स्वरूप में आओ अमृतधारी होना सिंह सजना ये बड़ा जरूरी है। संगत जी महाराज सच्चे पातशाह नूं सब नालों वध अमृतधारी सिंह प्यारा लगदा। किहदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता आए के फकीर एक अर्ज गुजार। दौले शाह फकीर ने कलगीधर जी नूं पुछया कहंदा तुहाडा प्यार किहदे नाल है किहदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता आए के फकीर एक अर्ज गुजारदा। माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना पुरी नाल प्यार हुंदा आनंद ना वसारदा। माया नाल प्यार करदे माया नदियां च ना रोड़दे जे घर नाल प्यार करदे आनंदपुर साहिब ना छड्डदे। पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोरदा ना पुत्तां नाल प्यार हुंदा जंग च ना वारदा। जे तुहाडा पुत्तरां नाल प्यार हुंदा जंग शहीद होण नूं ना तोड़दे। कलगीधर जी ये दसो तुहाडा प्यार किहदे नाल है। अगों हस बोले श्री दशमेश पिता अमृत प्यारा मैनू खंडे वाली तार। सब नालों प्यारा जे मैनू लगदा है ते खंडे बाटे दा अमृत प्यारा लगदा है। इस करके नौजवानों नूं बेनती है कारोबार करो कामकार करो पर गुरु वाले बन सिंह सजो जरूर अमृतधारी हो। ये साडा पहला फर्ज बनता है और बड़ा जरूरी है अमृतधारी होना सिंह सजना। चरण पौहल की मर्यादा सी। सेवादास जदों चरण पौहल लैके मुड़िया ते ओदी बजुर्ग मां आखण लगी वो कहंदी पुत्रा तेरे सतगुरु घर छड्डण नूं नहीं कहंदे कहंदे वो ते आप गृहस्थी ने बच्चियां वाले वो अपनी मां नाल प्यार करते हैं और कदे नहीं कहंदे घर बार छड्डो बच्चियां नूं छड्ड दिओ कदे नहीं कहंदे। वो ते खुद गृहस्थी ने बड़ी खुश हुई। हुण अपने पुत्र की लगन वेख के कहंदी बच्चिया जपदा की है। मां नूं भी दसिया भी वाहिगुरू वाहिगुरू जपना उन्हें भी शुरू कर दिता जपना। हुण जिवें जिवें बाणी लग पई पढ़न पुत्र की रीस करके कई मापे जोड़ते हैं कई बच्चे भी बजुर्गों नूं जोड़ते वेखे। निक्के निक्के बच्चे पहला लग जाते वड्डियां नूं सिक्ख्या दिंदे ने कई बच्चे इदां दे भी वेखे। वो आखदे मां कहती है पुत्रा रीस करदी करदी लग पई जपण। एक दिन बैठी रो रही आखन लगा मां रोंदी क्यों है। कहती रोंदी इस करके आ भी तू किड्डे भागां वाला है दर्शन कर आया 6वें पातशाह दे जाके ते मैं ते बजुर्ग हो गई हां मेरे तो एक पलांग नहीं पुट्टी जाती मैं पढ़ नहीं सकती 6वें पातशाह तक राह बड़े कठिन ने औखियां घाटियां ने मैं जा नहीं सकती मैं इदां ही मर जागी मेरे भागां च दर्शन नहीं। आखन लगा मां ये ते ठीक है भी तू नहीं जा सकती तेरा शरीर आज्ञा नहीं दिंदा तेरा शरीर ठीक नहीं है पर मेरा मन कहंदा जे तेरी शर्त है तू नहीं ना जा सकती ये ते वखरी गल है पर सतगुरु सच्चे पातशाह ते इत्थे आ सकते ने ना दर्शन देण वास्ते। आखन लगी मेरे कोल एडी दूर किद्दां आ जाणगे। आखन लगा मां जरूर आ जाणगे ना तू आवैं बस बस बहुत कढ़ावणे ना तू आवैं बस वेद पढ़ावणे ना तू आवैं बस तीर्थ नहाइए ना तू आवैं बस धरती धाइए ना तू आवैं बस किते सियाणपे ना तू आवैं बस बहुता दान दे सबको तेरा बस अगम अगोचरा तू भगतां के बस भगतां ताण तेरा। वो ते वस ने अपने भगतां दे
जे तेरे अंदर प्यार है तो इत्थे बैठी याद करिया कर, सतगुरु आ जाणगे जी मेहर करन। सचमुच बेटा आउणगे, कहंदे जरूर आ जाणगे। कहंदे ने चरखा कत कत के सतगुरां वास्ते बस्तर बनाया, भेंट करांगी बड़ी शरधा नाल बड़े प्यार नाल भेज के। हर समय महाराज सच्चे पातशाह नूं याद करदी रहिंदी सी। चादर बनाउंदी है, उत्ते फुੱਲ कढ़दी रहिंदी है, कढ़ाई करदी है ते सेवादास मां नूं कहंदा मां असली गल ते फिर बननी है। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए, कायां दी कुल्ली शरीर रूपी कुल्ली, इहदे विच जिद्दां जोत जगाउणी है ते नाम दी जगह। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर, दिल दे तख्त ते बाहर नहीं, दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विछा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विछा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विछा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विछा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विछा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विछा ले। बन प्रीतम तेरे दिल दे वेड़े रौनक लावेगा। 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 मेरी पीरी दा मालक आके दर्श दिखावेगा। 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 कायां दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कड विछाल है। बन प्रीतम तेरे दिल दे वेड़े रौनक लावेगा। मीरी पीरी दा मालक आके दर्श दिखावेगा। महाराज आउणगे जरूर। कहंदी है बच्चिया तेनू भरोसा है भी आ जाणगे, मेरे कोल है की। कहंदे उन्हां ने नहीं वेखना तेरे कोल है की, वो ते शरधा दे भुखे ने प्यार दे। ते मैं बेनती तुहाडे चरनां च बड़ी वारी कीती है। राम जी की मूर्ति नूं भोग लवाउण वालियां दी कमी नहीं, पर राम जी नूं कोई भीलणी वर्गा नहीं लभदा जिहड़ा झूठे बेर खवावे। कृष्ण जी की पूजा मंदिरां च बहुत हुंदी है, पर कृष्ण जी लभदे होणगे बिदर भी लभे किते जिहड़ा अलूणा साग खवावे। गुरु नानक साहब लई थाले असीं भी बड़े चुकी फिरने आ, पर गुरु नानक साहब नूं लभदा नहीं कोई लालो वर्गा जिहड़ा कोदरे दा प्रशादा। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ,
साडे कोल पैसा जरूर है, असीं यतन बड़ा करने, पर वो शरधा साडे च है नहीं, लालो वाली बिदर वाली, वो भावना दी साडे विच कमी। आ जाणगे जरूर, भरोसा रख माता महाराज साहब जरूर आउणगे छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मन। हुण कहंदी है वडेपा भी शिखरां ते प्रीत भी शिखरां ते, हुण जाया नहीं जाता, हुण तुरिया नहीं जाता, हुण करां की? बहुत तड़फदी रहिंदी। मैं बेनती करदा रहिना, काबल वल्लों संगत आई, रस्ते विच एक सेवादार ने ठहराई अंबां दे बाग विच, अंबां दा बाग, सारी संगत नूं बहुत सेवा कीती, अंब छकाए। सवेरे जदों संगत गुरु अर्जन देव जी कोल लगी ना जाण, ते अंबां दी टोकरी भर के देती, कहंदे लै जाओ महाराज नूं मत्था टेके। संगत अंबां दी टोकरी लैके गुरु अर्जन देव साहब कोल चली गई। महाराज आ एक सेवादार सी, राह विच उहने सानू ठहराया भी, साडी सेवा बड़ी कीती, बहुत प्यार कीता, ते आ अंबां दी टोकरी तुहाडे लई भेजी। गुरु अर्जन देव साहब कहंदे निहाल निहाल, जम्मन मरण कटिया गया भाई निहाल, फुलां तर गईयां। इन्नी खुशी। वो कोल बैठा भाई कूरम, कूरम वो कहंदा है सच्चे पातशाह ने अंबां दी टोकरी मिली ते इन्ने खुश हो गए, जम्मन मरण कट दिता, अंबां दी टोकरी हुई भेजी है ना सिख ने, गल ते इन्नी की है। वो कहंदा मेरा भी ते अंबां दा ही बाग है। वो बड़ा टोकरा भर लिया अगले दिन, सतगुरां दे चरनां च मत्था टेकिया, कहंदा लो महाराज, महाराज कहंदे उत्थे रख दे। सतगुरु जी छको, कहंदे लोड़ ही नहीं, रख दे उत्थे, संगत नूं वरता दे, कोई नहीं बस ठीक है। कहंदा महाराज मैनूं ये दसो भी कल ते इन्नी खुशी, अंबां दी टोकरी आई, मैं टोकरा लिआया, मैनूं भी कोई बचन करो। भाई कूरम कहंदा, धन गुरु अर्जन देव साहब कहंदे ने बाग ते तेरा पहला भी सी, पहला ना ले आया, हुण तू रीस कर रहा, नकल हो रही। असल ते एक बार ही हुंदी है। संत बाबा ईश्वर सिंह जी दा समा सी, दोबारा कोई बंदा उदां दी ऐनक ला के खुंडी आग लैके आ जाए ते वो थोड़ा बन सकदा। बाबा नंद सिंह जी ओही सन, उदू भी डूंगा टोया पुट के कोई बह जाए ते आखे मैं बाबा नंद सिंह बन गया, नहीं बन सकता। भाई साहब रणधीर सिंह ओही सन, उदू वड्डा खंडा कोई लाई फिरे ते आखे मैं भाई साहब तो उपर हो गया, वो ओही सन। वो घालना दूजा नहीं घाल सकता। केड़ा 17 साल जेल च रह लेगा, केड़ा इदां दी घालना वाला। ठीक है उसी उन्हां दे पैरोकार बन के पिछे पिछे, पर जे कोई आखे भी वो दोबारा समा आ सकता है, वो नहीं आ सकता। बाबा जरनैल सिंह साहब जी वांगू कोई तीर फड़ी फिरे, कोई दो फड़ ले तीर भावें, वो दोबारा नहीं बन सकता बाबा जरनैल सिंह वर्गा। समा हुंदा है, हर शख्सियत वाहिगुरू ने वखरी वखरी बनाई और वखरियां वखरियां ड्यूटियां वखरी, बाकी तो नकल होंदी। रीस की सेवा भी चलो ठीक है, पर वो गल नहीं बन सकती दोबारा। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने अंब लैके आया हुण रीस कर रहा है, वो तो एक बार ही हुंदा समा। जिवें कोई बाहरों आया थकिया, घर वाली नूं कहंदा पानी का गिलास लैके आ, वो पानी लैन गई, आउंदिआं नूं सौ गया। जदों उन्हें आके वेख्या भी मेरे घर वाला सौ गया, पानी का गिलास लैके सराहने खलो गई, उठाया उन्हें है ना। सवेरे जदों उठिया तो उहदे घर वाली पानी का गिलास सराहने लैके खलोती, ते आखण लगा भागवाने तू सारी रात इत्थे ही खलोती रही। कहंदी जी मैं तुहानूं उठाया इस करके नहीं, थके आए हो, ते मैं खलोती इस करके रही, की पता कदों पानी मंग लो, मैं खलोती रही तुहाडे सराहने पानी ले। अजकल तो ये गल्लां ओपरियां जिहियां लगदियां ने, अजकल इन्नी सेवा वाला कौन है। वो बड़ा खुश होया, उन्हें नालदियां नूं दस्सिया, गल हौली हौली वजीर तक पहुंच गई। वजीर ने राजे नूं जा दस्सिया। राजा कहंदा ऐदां दी बीबी मेरे राज विच भी सारी रात पानी लेके खलोती रही। वो सुता रहा कोल।
राजा कहता मैं तो उस बीबी का सन्मान करना है। आप आया राजा उहदे गल च फुल्लां दा हार पाया, बड़ा सत्कार कीता। गवांढणा मच गई, कहते गल ते कोई खास है नहीं, राजा आप आया चल के, गल ते कोई खास है नहीं। उस वेले अपने घर वालियां नूं गवांढण एक कहंदी है घर वाले नूं, कहंदी गल सुन, थक के आई ते जदों आएगा ते आके पानी मंगी, जदों मैं पानी लेके आवां मेरे आउंदियां नूं सौ जाई। हुण रीस शुरू हो गई, वो थक के ते जिद्दां आया आके पानी मंगिया, पानी लैण गई, आउंदियां नूं नींदर ते आई नहीं पर सौ गया डरदा भी इहने क्या सौ जाई। मैं सौ गया इदां अखां बंद कर लईआं, वो पानी का गिलास लेके खलो गई। हुण रीस हो रही, शोभा वास्ते हो रहा, पानी का गिलास लेके उस सराणे खलोती रही। उन्हें हुण सोचिया भी इन्हें बाहर ते आउणा नहीं, ध्यान दिओ जरा, इन्हें अखां ते खोलनियां नहीं, इदां ही रहेगा, उठना तो है नहीं सवेर तक। मैं एवें पानी का गिलास लेके खलोती रहा, मैं तो उठण तो पहला फिर खलो जागी। वो सौ गई, ओनू जाग आ रही, वो हुण वेखदा भी कदों ये उठे, पानी का गिलास लेके खलोवे ते मैं फिर उठा। वो सुती हुई उठी, पानी का गिलास लेके खलोती, फिर वो उठिया। भगवान ने तू सारी रात ही खलोती रही? कहंदे हाँ सारी रात मैं खलोती रही पानी का गिलास ले। वो हुण नाल दियां नूं जाके दसदा है भी इदां होया, लोकां च आप रौला पाउंदा फिरदा है पर ना कोई आया। हुण कहंदे हुण ते रीस हो रही, वो ते ओही सी, बस इक्को ही समा, दोबारा नहीं हो सकता इदां। हुण ते नकल कर रहे ने लोग, रीस हो रही है सर अंदरों। एक बारी महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भाई कूरम रीस कर रहे हैं, हुण नहीं गल बन सकती। कहंदा महाराज सच्चे पातशाह फिर इदां नहीं, मैं ते अंब लेके आया, छको। महाराज कहंदे इदां कर, तू देर लाई है छकाउण ते, हुण छकण ते भी देर लावांगे। कहंदे महाराज किन्ना समा लाओगे? कहंदे जा चलिया जा अपने बाग च बह जा जाके, हुण तेरे बाग च आवांगे ते मंग के अंब छकांगे। कहंदा समा दिओ कदों आओगे? तरीक पा दिओ। सच्चे पातशाह ने किड्डी लंबी तरीक पाती। धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने तरीक पाई, कहा गुरा ने दिल तेरे दी, कहा गुरा ने दिल तेरे दी आस पुगावांगे। 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 हाँ करू जमाना जात, जमाना याद करेगा, करू जमाना याद ऐसी प्रीत निभावांगे। 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 महाराज कहते ने जमाना याद करेगा, आवांगे। कहते जी कदों? तेरी प्रीत दे पत्ते सतवें जामे आवांगे। 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 कहा गुरा ने दिल तेरे दी आस पुगावांगे। करू जमाना याद ऐसी प्रीत निभावांगे। तेरी प्रीत दे बदे सतवें जामे आवांगे। कहंदा महाराज एडी लंबी तरीक
सतवें जामे मैं उन्ना चिर जिउंदा रहांगा, कहंदे मरदा नहीं तू। जिवें बुढ़न शाह नूं गुरु नानक साहब ने आख्या दुध पीआंगे आके ते 6वें जामे च पीता। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे 7वें जामे च आवांगे। फिर आए मोहाली दे विच गुरुद्वारा है अंब साहब, उत्थे अंबां दा बाग। चंडीगढ़ जाओ ना, उत्थे स्थान है महाराज अंब साहब ओहदा नाम है। 7वें पातशाह आए ते बुढ़ा हो गया सी, दाड़ा चिट्टा, उम्र वडेरी हो गई, बाग विच ही बैठा रहिंदा सी। भरोसा सी भी बचन कीता ते आउणगे जरूर। फिर 7वें पातशाह आए ते आके कहंदे ने भाई कूरम बाग च ही आ गया। उत्थे ही आसन लाता, बड़ा खुश होया, मत्था टेकिया, हथ कंबदे ने, बुढ़ा हो गया। सच्चे पातशाह जी आखन लगे लिया हुण बचन पूरा कर। कहंदे जी की अंब छका। हुण अंब ते गर्मियां च हुंदे ने महाराज। आए पोह दे महीने सियाल कहंदा अंब की अंबां नूं ते बूर भी नहीं। कहंदा गरीब नवाज हाथ जोड़ के कूरम जी कहन लगे, हाथ जोड़ के आख्या, हाथ जोड़ के कूरम जी कहन लगे कैसी मालका तुसा ने मंग कीती। जिंद कोल सी, जिंद सी मंग लैनी, मंग वखरे जहे तुसा ढंग कीती। आ की मंगया, जान मंगदे ते मैं देंदा। अंब कित्थों पैदा करदे, अंबां दा मौसम ही नहीं, अंब कित्थों आ जाण। फिर 7वें पातशाह ने आख्या तू 17-12 हो गया, तू बुढ़ा हो गया, तेनू पता नहीं लगता, तेनू दिसदे ही नहीं। अंब ते लगे होए ने, चंगी तरह वेख। उपर नजर मारी, सचमुच अंब लगे हुए नजर आ रहे। उथे फिर सतगुर जी ने अंब छके भी, ते उस गुरुद्वारे का नाम अंब साहब है। 7वें पातशाह का स्थान है। चंडीगढ़ मोहाली जाओ कदे, बहुत वड्डा गुरुद्वारा है। जिदा इत्थे बंगला साहब, शीशगंज साहब संगतां जांदियां ने, इदां उत्थे भी लाइनां ही लगियां रहिंदियां ने मत्था टेकण वालियां दीयां। गुरुद्वारा अंब साहब 7वें पातशाह जी ने किरपा की। 5वें जामे च बचन कीता, 7वें जामे च आए। इसे तरह बजुर्ग सी भाग भरी, ओदा पुत्र कहंदा सी याद करिया कर, आउणगे जरूर 6वें पातशाह मेरी पीरी दे मालिक। फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी इन्नी खिच पै गई, माता अखा बंद कर लिया करे, खोलिया ही ना करे, अभ्यास करती रहा करे, याद करती रहा करे। एक दिन फिर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जाना है, तैयार हो रहे ने, सेवादारां नूं तैयार हो जाओ भाई। एकदम ही तुर पे माता जी आए, 6वें पातशाह दे माता जी। माता जी ने आके बेनती की थी गंगा जी ने कि लाल जी किथे चले हो। कहंदे कश्मीर जाना है। सतगुरु के माता जी कहंदे एकदम ही प्रोग्राम बन गया जान दा, एकदम ही। कहंदे जाना पैना, खिच पै रही है, कोई बुला रहे। कौन है बुलाउण वाला? कहंदे अपने ही ने, अपने ही ने, खिच पै रही, जाना पैना। फिर 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब सेवादारां नूं नाल लैके संगतां नूं तारदे होए पहुंचे कश्मीर तक। श्रीनगर जाओ कदे, इन्नी मानता है उस गुरुद्वारे दी। कल्ले सिख नहीं श्रीनगर उस गुरुद्वारे च जांदे, कश्मीरी लोग भी उधरले वो भी उस गुरुद्वारा साहब मत्था टेकदे ने। माता भाग भरी दा अस्थान है जेड़ा 6वें पातशाह दे चरण पे, वो याद करती हुंदी सी। किसे नूं दसिया नहीं, कोई सुनिया नहीं, घल्लिया महाराज ने, 6वें पातशाह ने प्यार दे बजे होए। बदे कदम प्रीत दे, जदों प्यार नाल कदम बज जांदे ने ना, फिर रुकदे नहीं। प्रीत दे बजे कदमां नूं कोई रोक नहीं सकता। ये रुकदे ओही ने जेड़े कहंदे मजबूरी सी, मजबूरी नहीं तेरी दूरी सी। जिहदे अंदर प्यार है, दूरी ओहदे अगे आ ही नहीं सकती, मजबूरी कोई नहीं आ सकती।
मजबूरियां उन्हां दे आड़े आउंदियां ने जिन्हां दे अंदर दूरियां हुंदियां। प्यार वाले अगे कादी मजबूरी। बदे कदम प्रीत दे, प्रेम होवे सही, जिन्ना मर्जी रोक लो फिर रोकते नहीं। बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, बदे कदम प्रीत दे, बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, रुकदे ना थले। बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, ना थले। चल पिया पांदी प्रीत दा, चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले, चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले, मंजिल वल्ले। चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले, चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले, मंजिल वल्ले। बदे कदम प्रीत दे, बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, रुकदे ना थले। बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, बदे कदम प्रीत दे रुकदे ना थले, ना थले। पंथ निहारे कम नी, जीव रूप इस्तरी पंथ राह निहार दी। लोचन भरी ले अखां भरियां होइयां ने उसासा हो के लेंदी, लोचन भरी ले उसासा। उर ना भिजै कोई आ जाए मन खुश नहीं हुंदा, पग ना खिस्सै उत्थे ही खलोती पैर नहीं पीछे हटाउंदी। हर दर्शन की आसा उत्थे ही मन खलोता, कदे खुशी नहीं होई। महाराज सच्चे पातशाह आउण ते मन खुश होवे। हर समय उड़ीक लगी रहिंदी सी। महाराज ने किसे नूं नहीं दसिया। ओदे बूहे अगे जाके जदों घोड़ियां दे पौड़ दी आवाज सुनी, फिर सेवादास बाहर निकलिया। जदों बाहर निकलिया ते छेवें पातशाह नूं खलोतियां तक्किया बूहे च, एकदम दग दग करदा चेहरा तक के मन गदगद हो गया। सुध बुध भुल गई, किथे भावां। वेड़े चासण लाया बिठाता, मैं मां नूं आवाज मारना। सच्चे पातशाह इतनी कृपा की। सतगुरु कहंदे बेबे किथे है तेरी? अंदर। मैं बुला के लिया। महाराज बड़ा रोंदी सी, दर्शनां नूं तरसदी सी। छेवें पातशाह जी आखन लगे तू ना आवाज मार, मैं आपे बुलाना। आप गए अंदर उठ के। छेवें पातशाह खुद गए, चौंकड़ा मारिया, अखां बंद कीतियां ने घुट के। ते जिवें बच्चे ने दसिया सी ओह ते अंदर दर्शन करदी सी रोज। मन मंदिर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नाम, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जन्म नाम। ओह ते अंदर दर्शन करदी सी। छेवें पातशाह गए, आवाज मारी, कहंदे तक्को ते सही। भाई वीर सिंह ने बहुत सोहना लिखिया इस प्रसंग, तक्को ते सही। वो अखा नहीं खोलती बीबी, बुजुर्ग माता भाग भरी, अखा नहीं खोलती। महाराज कहंदे अखा खोलो, तक्को ते सही। कहंदे ना जी अखा खोलनियां ते फिर चले जांदे हो, अखा बंद करनियां ते दिसदे हो रोज। खोलांगी ते चले जाओगे, मैं अखा नहीं खोलनी। महाराज कहंदे वेखो ते सही, तक्को। नहीं वेख्या महाराज वाल। फिर छेवें पातशाह ने सिर ते हाथ रखिया, माता भाग भरी, फिर अखा खोलियां। महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते। जेड़ी मूरत अंदर सी ओही सामने खलोते ने।
चरना ते सिर रखिया बड़ा रोई। गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं जेड़े बस्तर बनाए सी हथ नाल दिते, मार सच्चे पातशाह कहंदे बेबे तेरे प्यार दे बजे आए आ, ऐडा पैंडा तय करके खिच पैंदी सी अंदर, धू पैंदी सी। इच्छा की है तेरी? कहंदी सच्चे पातशाह बस हुण ये इच्छा है भी आ गए हो, हुण तुहाडे चरनां च मेरी जिंद निकल जाए, हुण मैं जिउणा नहीं, हुण जिंद निकले। महाराज सच्चे पातशाह आखन लगे बेबे अजे रह, होर भी तेरे वल वेख के जुड़नगे। कहंदी ना महाराज मेहर करो, बस मेरी जिंद निकले। बार बार बेनती कर दी। महाराज कहंदे तेरी मर्जी है। फिर चादर लैके पै गई, सतगुरां दे चरनां च जान निकली। माता भाग भरी जिहदे सिर ते गुरां दा हथ होवे यारो ओदी तकदीर दे क्या कहने। बिना मंगिया करे मुराद पूरी, इस तरह दे पीर दे क्या कहने। घर बार त्याग फकीर होवे, एहो जहे फकीर दे क्या कहने। गुरु चरनां च जिहदी अखीर होवे, एहो जही अखीर दे क्या कहने। सतगुर दे चरनां च जिंद निकले, होर की चाहिदा। छेवें पातशाह दे चरनां च जान निकली ते छेवें पातशाह ने ओदा अंतिम संस्कार भी अपने हत्थीं कीता। उत्थे गुरुद्वारा बनिया है, अपने हत्थीं उस बजुर्ग मां दा संस्कार करके छेवें पातशाह आए। खिच पई, चौंकड़ा मार के कई कई घंटे बहिंदी सी। अभ्यास करने वाले जेड़े बंदगी वाले ने उते प्रतख सामने ले आउंदे ने सतगुर नूं। उते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते। उते हमेशा उते दूर समझदे ही नहीं, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी दे। उन्हां लई ते अज भी नेड़े ने, ते जिन्हें बहना नहीं कदे, जिन्हें 5 मिनट भी कदे चौंकड़ा मार के सिमरन नहीं करना जां जपजी साहब का भी पाठ नहीं करना, ओदे ओने दे फिर इदां दीयां गल्लां करनियां ने। की फायदा जी बार बार तोता रटन कर दे, एक जपजी साहब पढ़ लिया करो, बार बार पढ़न का की फायदा। इदां दे गुरु दे प्यारे खिच पांदे सी। एक करदा सी याद, दूजा आपे उठ तुरदा सी। टैलीफोन ते साइंसदाना अजे कल बनाए ने, ये ते अजे कल बने ने। एक एक याद करदा सी ते सतगुरु तुर पैंदे सी, खिच पै जांदी सी, दिलां नूं दिलां दे राह सी। पर हुण समां जिहड़ा है वो बदल गया, ते ऐसे सतगुर दे लड़ लगी है प्यारे। ते कल मैं बेनती कीती सी, बाद विच पछताउणा ना पवे। जिवें अजकल वेखदे ने जिन्हां ने अकाउंट च बाबे निर्मल दे पैसे जमा करा ते रोंदे ने हुण भी फस गए, असीं भी नाल ही, साडे भी गए पैसे। ते मैं कल बेनती कीती सी ना, जदों इदां दे लोग आउंदे ने सामने, फिर बदनाम सारे हो जांदे ने, सारे बदनाम हो जांदे ने। एक बंदा इदां दा करदा, सारियां नूं अगले ने सारे ही इदां दे होणगे। पर पूरे सतगुर दे लड़ लगिए, दर दर दा फिरना छड्ड के एक जगह अपना मन खिलारीए, सच्चे पातशाह जी दे दर नाल जुड़िए, नहीं ते भटकदे ही फिरांगे। बेरहम के दर पर मरहम लगाने हम गए, बेरहम के दर पर मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। मरहम नहीं मिलया, सगों आप ही मर गए। एवें जिंदगी बर्बाद कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग ने बेरहमा को तुरे फिरते ने, मरहम मिल जाएगी, उतों कितों कुछ नहीं मिलना। उहां ता जाइए जे इहां ना होए। सतगुर दा दर ता छड़िए जे इत्थे घाटा होवे किसी गल दा। भीखा जी कहते ने, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोल ना जानदा तां ते पया कंगाल। कहते गठड़ी खोलनी नहीं आउंदी तां कंगाल है। जाच आ जाए पूरे सतगुर तो जाच सिख लईए, ते फिर आ गठड़ी किते अंदर दी खोलनी आ जाए। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। गुरु दी मत लैके आपे दी खोज करिए, दर दर ना फिरिए, अंदरे मिलना है सारा कुछ। बस महाराज सच्चे पातशाह मेहर करन, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे लड़ लगना, बाणी बाणे दे धारनी होना है। ते मैं हमेशा बेनती कीती है, दर्शन हो सकदा जे कोई बने विचोला, दर्शन हो सकदा जे कोई बने विचोला, दर्शन हो सकदा जे कोई बने विचोला, दर्शन
ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ। ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਈਆਂ, 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 ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਈਆਂ। ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ। ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਗੀਏ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ,